میرے سر کی بس ایک یہ چھت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ بڑی کی وہاں پر درد بھری نظم سے پہلے بتا دیں دوستو، مرحوم بابا صدیقی کے بیٹے ایوان کانگریس ودھائک جیشان صدیقی این سی پی میں ہوئے شامل، باندرا پورو ودھان سبھا سے لڑیں گے چناؤ۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بڑی کی نظم، تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ایک نظم پڑھتا ہوں جس کا عنوان ہے ماں۔ اس نظم کی تمہید بس اتنی ہے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی ماں بیمار ہے، وہ خدا سے اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ مجھ سے سب کچھ چھین لے لیکن مجھ سے میری ماں مت چھین۔ یہ نظم میں نے تب کہی جب میری امی کا آپریشن ہو رہا تھا، میں آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا مسلسل روئے جا رہا تھا، اور یہ نظم آنسوؤں کے ساتھ وجود میں آئی تھی۔ میں پڑھتا ہوں صاحب اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں۔ خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ اگر چھیننا ہے جہاں چھین لے وہ، زمین چھین لے آسمان چھین لے وہ، میرے سر کی بس ایک یہ چھت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ کلیم کیسر صاحب نے کبھی ایک شعر کہا کہ اپنے بچوں سے لگا رکھتے ہیں سب کیا کیا امید، خوش نصیبی ہے جو اپنے پیڑ کا پھل کھا سکے، پوری کرتے رہتے ہیں بیوی کی سب فرمائشیں، اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے، اور بوڑھی ماں کا ایک چشمہ نہیں بنوا سکے۔ وہی ماں کہتی ہے کہ اگر ٹوٹا ہوا چشمہ میرا بنوا دیا ہوتا تو میں اچھا شگن اچھا مہورت دیکھ سکتی تھی، مجھے خواہش کہاں دنیا کو دیکھوں اے میرے بیٹے، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی، مگر چشمہ لگا کر تیری صورت دیکھ سکتی تھی۔ پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا صاحب کہ اگر ماں نہ ہوتی زمین پر نہ آتا، جو آنچل نہ ہوتا کہاں سر چھپاتا، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، میرا لال کہہ کر بلاتی ہے مجھ کو کہ خود بھوکی رہ کر کھلاتی ہے مجھ کو، یہ دامن میرا چاہے نم کر دے جتنا، وہ بس آج مجھ پر کرم کر دے اتنا، جو مجھ پر ہوئی ہے عنایت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے، خدا مجھ سے ماں کی محبت نہ چھینے۔ کہ مجھے پالا پوسا بڑا کر دیا ہے، کہ پیروں پہ اپنے کھڑا کر دیا ہے، کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا، کبھی جب اندھیروں نے مجھ کو ستایا تو ماں کی دعا نے ہی رستہ دکھایا، ان ہونٹوں کی میرے ہنسی چھین لے وہ، کہ غم دے دے ہر ایک خوشی چھین لے وہ،
यही एक बस मुझसे दौलत न छीने, खुदा मुझसे माँ की मोहब्बत न छीने। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या करना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, दिन की बातें किताब से जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा नकल करने से ये गर्ज नहीं कि लोग इसी खुतबा पर इल्तिजाम कर लें, बल्कि कभी कभी बगर्ज तबर्रुक व इत्तिबा इसको भी पढ़ लिया जाया करे। आपकी आदत शरीफा ये थी कि जब लोग जमा हो जाते इस वक्त आप तशरीफ लाते और हाजरीन को सलाम करते और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आजान कहते। जब आजान खत्म हो जाती आप खड़े हो जाते और मान खुतबा शुरू फरमा देते। जब तक मिंबर ना था किसी लाठी या कमान से हाथ को सहारा दे देते और कभी कभी इस लकड़ी के सुतून से जो मिहराब के पास था जहां आप खुतबा पढ़ते थे तकिया लगा लेते थे। बाद मिंबर हो जाने के फिर किसी लाठी वगैरह से सहारा देना मलकूल नहीं। दो खुतबे पढ़ते और दोनों के दरमियान में कभी थोड़ी देर बैठ जाते और इस वक्त कुछ कलाम न करते, ये दुआ मांगते। जब दूसरे खुतबे से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरागत होती तब हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु इकामत कहते और आप नमाज शुरू फरमाते। अक्सर खुतबे में फरमाया करते थे। नमाज तरावी का बयान। रमज़ान के महीने में तरावी की नमाज भी सुन्नत है, इसकी भी ताकीद आई है। इसका छोड़ देना और न पढ़ना गुनाह है। इशा के फ़र्ज और सुन्नतों के बाद 20 रकात तरावी पढ़े, चाहे 2 रकात की नियत बांधे चाहे 4 रकात की, मगर 2 रकात पढ़ना अफजल है। जब 20 रकातें पढ़ चुके तो वित्र पढ़े। मसला, वित्र की बात वित्र के जमात से पढ़ना बेहतर है, अगर पहले पढ़ ले तो भी बेहतर है। मसला, नमाज तरावी में 4 रकात के बाद इतनी देर तक बैठना जितनी देर में 4 रकातें पढ़ी गई हैं मुस्तहब है। हाँ, अगर इतनी देर तक बैठने से लोगों को तकलीफ़ हो और जमात के कम हो जाने का खौफ हो तो इससे कम बैठने में इख्तियार है, चाहे तन्हा नवाफिल पढ़े या तस्बीह पढ़े चाहे चुप बैठा रहे। मसला, अगर कोई शख्स ईशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ चुका हो और नमाज पढ़ चुकने के बाद मालूम हो कि ईशा की नमाज में कोई ऐसी बात हो गई थी जिसकी वजह से ईशा की नमाज नहीं हुई तो उसकी ईशा की नमाज की इयादा के बाद तरावी का इयादा करना चाहिए। मसला, अगर ईशा की नमाज जमात से न पढ़ी होगी हो तो वित्र भी जमात से न पढ़ी जाए, इसके लिए तरावी ईशा के ताबे है। हाँ, जो लोग जमात से ईशा की नमाज पढ़कर तरावी जमात से पढ़ रहे हैं उनके साथ शरीक होकर इस शख्स को भी तरावी का जमात से पढ़ना दुरुस्त हो जाएगा जिसने ईशा की नमाज बगैर जमात के पढ़ी है। मसला, अगर कोई शख्स मस्जिद में ऐसे वक्त पहुँचे कि ईशा की नमाज हो चुकी हो तो उसे चाहिए कि पहले ईशा की नमाज पढ़ ले, फिर वित्र तरावी शरीक होकर अगर इस दरमियान में तरावी की कुछ रकातें हो जाए तो उनको बाद वित्र पढ़े और ये शख्स वित्र जमात से पढ़े। मसला, रमज़ान के महीने में एक मरतबा कुरान मजीद का तरतीब वार तरावी में पढ़ना सुन्नत मुक़्क़दा है और लोगों को काहिली या सुस्ती से इसको तर्क न करना चाहिए। हाँ, अगर ये अंदेशा हो कि अगर पूरा कुरान मजीद पढ़ा जाएगा तो लोग नमाज में ना आएंगे और जमात टूट जाएगी या उनको बहुत नागवार होगा तो बेहतर है कि जिस कदर लोगों को गिरा ना गुजरे इसी कदर पढ़ा जाए। अलम तरा कैफा से आखिर तक 10 सूरतें ही पढ़ी दी जाए, हर रकात में एक सूरत। फिर जब 10 रकातें हो जाए तो उन सूरतों को दोबारा पढ़ दे और जो सूरतें चाहे पढ़े। मसला, एक कुरान मजीद से ज़्यादा न पढ़े तावक्तिया लोगों का शौक़ न मालूम हो जाए। मसला, एक रात में पूरे कुरान मजीद का पढ़ना जायज़ है बशर्ते कि लोग नहायत शौकीन हों कि इन लोगों को गिरा न गुजरे और अगर नागवार हो तो मकरूह है। मसला, तरावी में किसी सूरत के शुरू पर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बुलंद आवाज़ से पढ़ देनी चाहिए, इसलिए कि बिस्मिल्लाह भी कुरान मजीद की एक आयत है। अगरचे किसी सूरत का जुज़ू नहीं, बस अगर बिस्मिल्लाह बिल्कुल न पढ़ी जाए तो कुरान के पूरा होने में एक आयत की कमी रह जाएगी। अगर आहिस्ता आवाज़ से पढ़ी जाएगी तो मुक्तदियों का कुरान पूरा न होगा। मसला, तरावी का रमज़ान के पूरे महीने में पढ़ना सुन्नत है, अगरचे कुरान मजीद महीना तमाम होने से कबल ख़त्म हो जाए। मसलन 15 रोज़ में पूरा कुरान मजीद पढ़ दिया जाए तो बाकी दिनों में भी तरावी का पढ़ना सुन्नत मुक़्क़दा है। मसला, सही है कि कुल अल्लाहु अहद का तरावी में 3 मरतबा पढ़ना जैसा कि आजकल दस्तूर है मकरूह है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़म और नई खबरों के साथ।
تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال. آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.